अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो हमारा जो टॉपिक था जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। एज आई मेंशन दैट इन द माय प्रीवियस टॉपिक, what about the functions of the neurons, that they are used out to carry out the messages to the different parts of the body in the form of no impulse. So they carry the message in the they carry the message in the form of no impulse, and no impulse भी मैंने बता दिया था कि it's a self propagative electrochemical signals। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरॉन के रिलेटेड है, कि न्यूरॉन का कुछ जो पार्ट है वो रह गया था हमारे पिछले टॉपिक में। तो नाउ लिसन हियर। तो मैंने आपसे कहा था कि न्यूरॉन के थ्री पार्ट्स होते हैं, कि इट्स हैविंग the main part, that's to be called as this one, it's to be called as cyton. Out of stretch out the cytoplasmic processes, these cytoplasmic processes are to be called as dendrites, and from the axon hillock there arise the uniform long cylindrical of a cylindrical diameter, that's to be called as axon। okay, तो मैंने ये भी बता दिया था कि at the axon it bifurcates into the number of branches, and these branches are to be called as terminal branches, or we just called as हम इसे terminal branch कहते हैं, और we called it either we just called it as a terminal branch. So they were to be called as terminal branches. तो मैंने कहा इट्स ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज टर्मिनल आर्बोराइजेशन। तो इसके बाद मैंने कहा कि इट्स हैविंग द एक्सॉन इज having the different types of layers over it, one just as having its own membrane, that's to be called as exolemma, or exolemma ke that's having it a cytoplasm, that's to be called as the exoplasm. And one feature I just mentioned over here, that like the cell body, it's having the nasal granules, where the exoplasm lacks such type of structures. Now, additional to this two types of, like as exolemma or the exolemma, there is the neurolemma. The axon may have an additional insulating and protective sheath, that's to be called as myelin. So myelin is an additional covering over the axon. So you just find that additional covering over the axon, it's to be called as myelin. So myelin is an insulating extra covering over the axon, that's to be called as myelin. Now what we just called as the neuron, or we called as the axon, वो न्यूरॉन जिसके axon के ऊपर ये कवरिंग होगी, insulated additional covering होगी, that is to be called as myelinated neuron. Okay, we just called as a myelinated neuron. And the axon that's lacking the myelin sheath, or that's not having an additional covering over the axon, that is to be called as non-myelinated neuron. So we can differentiate between the myelinated and non-myelinated neurons or neurofibers, which is called as those neurons that are having the neurofibers, those are having the myelin additional covering, they are to be called as myelinated neuron, where as those without this myelin, without this sheath, it's to be termed as non-myelinated neurofiber. So myelinated neurofiber can conduct impulse more efficiently than non-myelinated neurofiber. So we can have the function of this myelinated sheath, or myelinated sheath over the myelinated neurofibers, that these myelinated nerves, they can conduct the impulses more efficiently than the non-myelinated neurofibers or neurons. And you know that at these intervals, these myelinated nervous fibers, they passes the unmyelinated areas. So at certain areas you just find that they pass the non-myelinated areas, like this. If this is the axon, it's having the covering over it, this is the myelin sheath, again this is the myelin sheath, but here this is the area that is not covered with this myelin. So this area where
So this Arvagason area, or which is called as interval, while the myelinated neurofibers passes the, oh okay, they passes the unmyelinated areas. So these are unmyelinated areas. These are unmyelinated areas, like this. These, they are unmyelinated areas, and these unmyelinated no areas are to be called as nodes of Ranvier. Okay, they are to be called as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. Now this was all. I just was about the parts. Now at the ends, these myelinated neurons, you know that they bifurcates into the terminals, and it's to be called as terminal arborization. Okay, they are to be called as terminal arborization, and each of the end of the terminal, each of the end of this terminal having it as its having a knob like structure. This knob like structure is to be called as, it's to be called as presynaptic knob. तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि जो टर्मिनल्स ऑफ एक्सान होते हैं, ये टर्मिनल्स ऑफ एक्सान्स एट द एंड स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं. दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर टू बी कॉल्ड एज, दे आर टू बी कॉल्ड एज presynaptic knobs. तो यहाँ आप देख रहे हो, these are the terminals. These terminals at the end develops the knob like structures. These knob like structures are to be called as presynaptic knobs. Okay, they are to be called as presynaptic knobs. Further I will just mention what are the functions of these presynaptic knobs. Let me have the let me have certain features, I mean say that let me discuss certain special properties of the neurons. तो मैंने myelinated और non myelinated neuron आपको कहा, तो let me discuss certain special properties of neuron. तो properties क्या है कि they are special properties ये है कि they do not divide like the other cells you just find in the body. Either the cells are there, either they divide, there is a mitotic division or there is a meiotic division. Okay, either there is a reductional division or there is a cell divides into two. तो यहाँ पे हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, तो सॉरी दो तरह की डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिवीजन और मियाटिक डिवीजन होता है. तो सेल्स डिवाइड होती है, लेकिन ये जो सेल्स होती हैं, नो सेल्स और न्यूरॉन्स, दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होती है. ओके, सो सेकंड, दे फ्रॉम द शॉर्टली आफ्टर द बर्थ द न्यूरॉन्स डू नॉट डेवलप. तो सेकंड, so till the development, I mean say that till the birth or the parturition, the neurons continuously develop. Once the birth takes place, they stop their development. And third one, they are not repaired when get injured. So अगर इंजरी हो जाती है तो इंजरी के बाद ये रिपेयर नहीं हो जाते हैं, तो डिवाइड नहीं होंगे तो रिपेयर भी नहीं होंगे ऑब्वियसली. ये इनका एक और फीचर है. और यूज ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो ये अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी जो इसका प्रोडक्ट होता है, वेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. सो इनका जो फ्यूल है, जिसे हम कहते हैं फ्यूल, विच गेट्स ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द न्यूरॉन्स, दैट इज द ग्लूकोज. सो वी जस्ट कॉल्ड एज ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. And third one, die if deprived oxygen for 5 minutes. So we just call that, if there's a shortage of oxygen for about 5 minutes, अगर 5 मिनट तक शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो इफ दे आर नॉट गेटिंग दिस ऑक्सीजन फॉर अबाउट 5 मिनट्स, यू अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दे यूजुअली इट कॉजेज द डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स. ओके, इट कॉज द डेथ ऑफ.
सो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन मे कॉज द डेथ ऑफ न्यूरॉन्स विद इन द 5 मिनट्स। अब जो मैं बताना चाहता था आपको, इट वाज द साइनेप्स। देखिए साइनेप्स होता क्या है। मैंने कहा जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होती है। तो यूजुअली they usually remain connected one another. The connection or the type of junction that is formed due to the connection, due to the binding of the two neurons at the different intervals, that is to be called as synapse. So what's a synapse? मैंने कहा synapse are not actually, they are not connected, means that they are connected. Connection इतना नहीं है कि two are unified together, but there is always a gap between the two neurons. So there occurs a very minute gap between the terminal portion of an axon of one neuron and dendrite of another neuron. This minute gap is called synapse. तो आप ये कह सकते हो कि मैंने कहा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं they lie end to end in the chains, okay, transmit the neural impulses, they transmit the neural impulses in the animal body. So each neuron receives an impulse through its dendrites. Then dendrite के बाद से पास करता है सेल बॉडी को, सेल बॉडी से पास होके, जैसे सेल बॉडी से पास होके सेल बॉडी से पास होके कहाँ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये रहा, डेंड्राइट्स रिसीव करते nerve impulse, these nerve impulse then transport to the cell body, where the cell body transports then the axon, then finally from the axon they are being transported to the terminals of the axon, which are to be called as presynaptic knobs. तो यहाँ से कहाँ जाएगी nerve impulse? तो यहाँ से nerve impulse जाएगी दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर। तो मतलब दे आर, दूसरा न्यूरॉन जो होगा वो कनेक्ट होगा इसके टर्मिनल, मतलब दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो होगा वो इसके टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट में रहेगा। तो मैंने कहा कनेक्शन इज नॉट लाइक दैट दे आर यूनिफाइड, बट देयर इज ऑलवेज अ गैप। तो गैप रहती है, दैट गैप इज टू बी कॉल्ड एज साइनेप्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, देयर इज ऑलवेज अ माइन्यूट गैप बिटवीन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो एक ये इसका डेंड्राइट है, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये लीजिए दूसरे न्यूरॉन का ये terminals of axon है. So this terminal of axon of one neuron and the dendrite of another neuron, they remain in connection with each other, and this connection, and in the connection there is always a small gap. So the connection or a small gap that's being created because of the connection of the two neurons, that is to be called as synapse. उसे synapse हम कहते हैं. तो synapse आप यहाँ पे एग्जाम्स में पूछते हैं कभी साइनेप्स की डेफिनेशन, आप यहाँ देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि देयर इज you know that there occurs a very minute gap between the terminal or portion of the one neuron and the dendrite of another neuron. This minute gap is to be called as synapse. That's to be called as synapse. Okay, so अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक न्यूरॉन का टर्मिनल एक्सॉन होता है, टर्मिनल्स ऑफ एक्सॉन। तो ये टर्मिनल एक्सॉन जब नीचे जाता है तो ये बाइफरकेट, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द टर्मिनल एक्सॉन, जो मैंने कहा, इट इज कॉल्ड प्री साइनॉप्टिक नॉब। इट्स कॉल्ड प्री साइनॉप्टिक नॉब, एंड दिस प्री साइनॉप्टिक नॉब आर हैविंग इट्स it passes the mitochondria, it passes the synaptic vesicles, okay, synaptic vesicles। तो ये रिमेन होता है, ये अटैच रहता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ। ये लीजिए, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे ऑलरेडी मैंने कहा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन। पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन, जैसे मैं पहले यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए ये रहा एक्सॉन। तो ये एक एक्सॉन का जो टर्मिनल ब्रांच होते हैं, तो ईच टर्मिनल ब्रांच जो होता है वो बाइफरकेट हो जाता है इनटू नॉब लाइक स्ट्रक्चर। दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज टू बी कॉल्ड एज प्री साइनॉप्टिक नॉब। अब इस प्री साइनॉप्टिक नॉब का पे थोड़ा ये ऐसे स्ट्रक्चर लेता है प्री साइनॉप्टिक नॉब। तो दिस प्री साइनॉप्टिक नॉब कंसिस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइनॉप्टिक वेसिकल्स। तो दिस रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये रहा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट,
लाइक दिस। तो ये डेंड्राइट है, और ऊपर जो डेंड्राइट जो स्ट्रक्चर बनाता है, इट इज कॉल्ड पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन। This one is called post-synoptic depression, and this one is called presynoptic nerve. So this is terminal of one axon. This is dendrite of another axon. So terminal of axon forms the presynoptic nerve. Dendrite of another axon forms the post-synoptic depression. So this is the gap. This gap is to be called as it's to be called as synoptic cleft. It is to be called as synoptic cleft. तो मैं बता रहा हूँ, the two axons are not in contact with each other, but there is always a gap. This gap, it is to be called as synoptic cleft. Synoptic cleft, इसे synoptic cleft कहते हैं. Okay, and this synoptic cleft, it remains that it remains always with a filled with a fluid. It remains filled with a fluid, that's called synoptic fluid. Here it remains synoptic fluid. तो दूसरा यहाँ पे कहता है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि these are to be called as the post synoptic depression, and this post synoptic depressions में होते हैं क्या, it consists of the chemoreceptors, और इसे कहते हैं कीमो सीरीज और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, यहाँ पे ऐसे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं साइनैप्स। ये रहा साइनैप्स। ओके, नाउ लिसन हियर। तो यहाँ पे एक्सॉन, प्रीसाइनॉप्टिक नर्व, पोस्ट साइनॉप्टिक डिप्रेशन। तो आप सुनिए मेरी बात, जब न्यूरो इम्पल्स जो होती है, जो ट्रांसमिट करती है, न्यूरो इम्पल्स जो होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं पहले सेल डेंड्रॉइड से, फिर एक्सॉन तक, फिर टर्मिनल आर्बोराइजेशन तक, फिर पहुंचते हैं टर्मिनल ऑफ एक्सॉन तक, और टर्मिनल ऑफ एक्सॉन से लेके जाता है ये रहा टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, फिर पहुंच द साइनॉप्टिक जो न्यूरो इम्पल्स होती है, इसे कहते हैं जो प्रीसाइनॉप्टिक नर्व तक आ जाती है, वो न्यूरो इम्पल्स यहाँ पे एक्टिवेट करती है साइनॉप्टिक वेसिकल्स को। दीज साइनॉप्टिक वेसिकल्स दे सेक्रेट द chemicals. These chemicals are to be called as the chemicals that are being secreted by that of the synoptic vesicles. They are to be called as neurotransmitters. और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाते हैं, ये लीक आउट हो जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं इस साइनॉप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एज हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हमारे ब्रेन के जो न्यूरो सेल्स होती है, जो ब्रेन सेल्स होती हैं, जैसे एग्जांपल्स होते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे लेवोडोपा, डोपामीन जो होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं, टाइप ऑफ ए केमिकल। तो ये टाइप ऑफ ए केमिकल यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। तो यहाँ से इसको रिसीव करते हैं, इन केमिकल्स को रिसीव करते हैं कौन, ये कीमो रिसेप्टर्स। और फिर तो यहाँ तक रह गया न्यूरो इम्पल्स, इट्स एन इलेक्ट्रिकल। उसके बाद यहाँ से केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता, हो गया केमिकल। उसके बाद ये जो रिसीवर्स होते हैं, ये अगेन इस केमिकल को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोपेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। इट्स इलेक्ट्रिकल अप टू द axon, and where it's being converted into the chemical, that's to be called as, that chemical, they are to be called as neurotransmitters. Again, these are again to be received by these chemoreceptors, और ये chemoreceptors इनको फिर से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर से ये ट्रांसमिट हो जाते हैं डेंड्राइट में, और डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद फिर से ऐसे ये इसी तरह ये न्यूरो इम्पल्स कंटिन्यूसली चलती रहती है थ्रू न्यूरो फाइबर तक। और जिस तरह से हमारी मैसेजेस ट्रांसमिट होती है टू एंड फ्रो, मीन्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द organs, or from the organs or receptors back to our central nervous system, that's our brain and spinal cord. ओके, तो इस तरह से एक न्यूरो इम्पल्स जो होती है ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैसेज क्या रहती है, वे ऑफ मैसेज क्या रहती है, तो मैसेज ये रहती है कि जो स्टिमुलस, पहले स्टिमुलस, व्हाट यू रिसीव, व्हाट मेक्स यू टू एक्टिवेट एंड अकॉर्डिंगली यू रिस्पॉन्ड। तो स्टिमुलस के बाद पहले डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी के बाद एक्सॉन। ये मैसेज मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक या किस तरह से ट्रांसमिट हो जाती हैं, कैसे ट्रांसमिट हो जाती है, वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका।
तो पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, ओके, एक्सॉन के बाद टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, टर्मिनल ऑफ एक्सॉन के बाद पैसेज जो होता है, पैसेज ऑफ इम्पल्स थ्रू द साइनॉप्टिक, यू नो दैट इट्स टू बी वी जस्ट कॉल्ड एज पैसेज ऑफ, जो होता है उसे कहते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाता है किस में, इम्पल्स थ्रू द साइनेप्स गैप, तो वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, अभी मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर्स में, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाद जैसे आप न्यूरोट्रांसमीटर्स जहाँ पे कलेक्ट रहता है साइनॉप्टिक क्लेफ्ट में, वहाँ से ये फिर इसको रिसीव करते हैं कौन, इन्हें कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो ये मैसेज एक रहती है, ट्रांसमिशन मैसेज रहती है एक न्यूरॉन के द्वारा। तो अब हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और रिलेइंग न्यूरॉन्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वी आवर बॉडी डू हैव, सेंसरी न्यूरॉन्स, motor neurons and relaying neurons. So sensory neurons, motor neurons and relaying neurons, these are 3 types of neurons that are present in our body. तो जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिलेइंग न्यूरॉन, तो इन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और ये भी बता दूंगा कि इन न्यूरॉन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे हीट, कोल्ड जो रिसीव करते हैं, कोल्ड इम्पल्स और रिसीव करते हैं, दैट मेक्स यू टू फील कोल्ड, दैट मेक्स यू टू फील द लाइट, दैट मेक्स यू टू सेंसेट, आई मीन से दैट मेक्स यू टू give you the sensation of sound or sensation of taste. What are these to be what are these neurons to be called as? जैसे हीट को बोलते हैं थर्मो, कोल्ड को भी बोलते हैं थर्मो, लाइट को बोलते हैं फोटो, साउंड को बोलते हैं फोनो, स्मेल को बोलते हैं यू नो दैट फोनो रिसेप्टर्स, इसी तरह टच को बोलते हैं टैंगो, टेस्ट को बोलते हैं गेस्टो, इसी तरह जो मतलब ऑल्फैक्टरी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इन सारे न्यूरॉन्स को मैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक में सारी, एक तो न्यूरॉन्स को हम टाइप ऑफ रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे एक बात, और दूसरा जो हमारा है दैट इज वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, व्हाट आर मोटर न्यूरॉन्स एंड व्हाट आर रिलेइंग न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन्स आई विल डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्स में आपसे जो पूछा जाता है दैट्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स से रिलेटेड कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपसे पूछा जाता है। जब भी आपको स्ट्रक्चर के लिए कहा जाए तो याद रखिएगा, एक तो आप डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कीजिएगा न्यूरॉन के, और इससे रिलेटेड आप वहाँ पे एक वेल लेबलर डायग्राम भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे पार्ट्स मैंने कहा, एक तो डेंड्राइट अलग से डिस्कस करना है, सेल बॉडी को अलग से डिस्कस करना है, एक्सॉन को अलग से डिस्कस करना है, और एक्सॉन के बाद इसका जो टर्मिनल आर्बोराइजेशन है या टर्मिनल्स ऑफ एक्सॉन है उनको अलग से डिस्कस करना है। तो ये इतना आप डिस्कस करोगे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट्स हैपनिंग एट द synapse, what's happening at the synapse, what's happening at the site where the two neurons are in contact with each other, तो आपको डिस्कस करना है ये वाला पार्ट जो अभी मैं बता रहा था, this part, what's happening actually. So this is the synapse, the junction between the two neurons, this is the part, this is the part where the two neurons are to be in contact with each other. तो अगर आपको आएगा what's happening at the junction और what's happening at the synapse, तो आपको यहाँ पे जो मैंने बोला ये डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा अबाउट द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, तो आपके इसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करना है। तो इसके बाद फर्दर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट अभी जो मैंने बताया कि वो विल डिस्कस द सेंसरी, मोटर एंड रिलेइंग न्यूरॉन्स इन द कमिंग वीडियो। थैंक यू।